We'll see the question first, how this SN1 can be asked. So that is describe the mechanism in which %50 inversion is obtained. Okay. Or describe the mechanism of alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide. Okay. If there is 50% inversion or alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide, that means SN1 reaction. So it can be directly also like describe the mechanism of SN1 reaction. Okay. So how to start this? Answer. As we saw in SN2 mechanism, similar way, we'll start for SN1, that S for substitution reaction. This N is nucleophilic. This one for first order reaction. Unimolecular reaction. Okay. Now after this introduction, now very first point, as you know, we start with reaction. Exact what is the reaction there? So under this reaction, if you'll see, it is given alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide. So tertiary butyl bromide, we can write it like CH3 thrice CBr plus this sodium hydroxide. So what happens here? NaBr is given out and we get this tertiary butyl alcohol. According to ionic theory, how we can write this? We'll discuss only active atoms here. So sodium will not be there. We'll write that nucleophile OH minus here. There is a nucleophile. Okay. So we are done with the reaction part here. As last class we saw,
मैंने बोला था आपको कि Br atom is replaced by nucleophile, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। ये पिछली बार ही बात हुई थी कि इतना सिंपल सा रिएक्शन दिख रहा है कि Br की जगह पे OH अटैच हो गया है and we got this tertiary butyl alcohol, पर ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली इसके पीछे व्हाट इज दैट मैकेनिज्म, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उसमें 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन मिलेगा आपको। व्हाट इज दैट, मतलब Br का जो ओरिएंटेशन है, जो इसकी पोजीशन है, इफ इट इज टू द राइट साइड, तो आपका जो OH है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन देगा। वो Br की पोजीशन भी ले सकता है और अपोजिट। सो दैट विल सी। सो फॉर दैट, बिफोर गोइंग टू दैट मैकेनिज्म, पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक्स। सो व्हाट इज द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं रिएक्शन का रेट कैसा है। दैट रेट डिपेंड्स अपॉन व्हाट। सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन is directly proportional to concentration of substrate only, not the nucleophile. क्योंकि सिर्फ सबस्ट्रेट पे रेट डिपेंड करता है, इसलिए इसका यूनिमॉलिक्यूलर भी इसको बोला जाता है, बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल हियर, not nucleophile. And here we can write a rate is equal to this proportionality constant K and this CS3 thrice CBr. So the rate depends upon only one. Now then we'll go for mechanism. For this SN2 reaction, see what we did in case of SN2 and what is there in SN1. What is the difference? In case of SN2, 3 hydrogen atoms were there, like hydrogen atom here, hydrogen second, and third is this, and there is Br, methyl bromide. That's why we discussed SN2 first. Why? जब तक आपको SN2 नहीं पता होगा तो SN1 समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले SN2 करते हैं। देखिए पिछली बार क्या बात हुई थी, हमने आपको बोला था कि this OH minus cannot attack from front side because this bromine being nucleophile repels the attack, and that's why ये जो न्यूक्लियोफाइल इसने कहां से अटैक किया था, फ्रॉम बैक साइड। बट दिस टाइम, जैसा कि हमने स्टोरी बनाया था लास्ट टाइम, आपने देखा था, हमने बोला था कि शी राइट हैविंग 3 किड्स हाइड्रोजन, हमारी बात हुई थी। तो इस बार ऐसा हो गया स्टोरी में कि आफ्टर 5 years, स्टोरी में दिखाते हैं ना 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद, तो आफ्टर 5 years फिर वही सीन वापस रिपीट होने जा रहा है 5 साल के बाद। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चे हाइड्रोजन नहीं रहे, अब वो मिथाइल बन चुके हैं, दिस। सो 5 साल के बाद क्या होता है, ये OH अंकल यहां से अटैक नहीं करते, उनको पता है कि Br अंकल जगह नहीं देंगे। सो व्हाट, ये OH अंकल क्या करते हैं फिर, याद है आपको SN2 अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा हमने किस तरह से ड्रॉ करके आपको बताया था। सो नाउ दिस टाइम OH अंकल फिर वही ट्राई करना चाहते हैं, जब ट्रेन आपकी टनल में जाती है वहां पे वो सोचते हैं चलो फिर से वही एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, बच्चों को एडजस्ट करके आई विल सिट देयर, और जैसे यहाँ पे वो बैक साइड अटैक करेंगे, व्हाट विल हैपन, आप ही सोचिए। पहले छोटे बच्चे थे हाइड्रोजन, कैसा हो गया था SN2 में, मैंने आपको बताया था कि 2 बच्चे ऐसे गोद में बैठ गए थे,
एक बच्चा उन्होंने यहाँ बिठा रखा था और फिर जगह बना के देयर इज लाइक ये बी आर अंकल इज देयर और यहाँ पे आपके ओ एच अंकल सारे एक साथ बैठ गए थे ऑल। जब सारे एक साथ बैठ गए तो उसका नाम था ट्रांजिशन स्टेट एंड एनर्जी वाज हाई। इस बार क्या हो रहा है कि आपके जो ओ एच अंकल हैं वो इन बच्चों को उठा ही नहीं सकेंगे कि सेटल कर सके, मम्मी के पास बिठा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं और मिथाइल बन चुके हैं, राइट। सो दिस टाइम व्हाट विल हैपन, यू नो, ये OH माइनस कहीं से भी अटैक नहीं कर सकता है, सामने से नहीं अटैक कर सकता बिकॉज ऑफ दिस ब्रोमीन बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल। इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम बैक साइड। उसके लिए आप ये मत बोलिए कि वहां पे हाइड्रोजन मिथाइल हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, 5 साल की बात है, ये सारा नहीं लिखना है। ये तो मैं आपसे स्टोरी ऐसे डिस्कस करता हूँ कुछ याद रखने के लिए। हम लोग को बोलना पड़ेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स बोल दीजिए, या तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, सबसे बेस्ट वर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। सो व्हाट विल डू हियर, यू नो, ये रिएक्शन, ये जो मैकेनिज्म है, बिफोर राइटिंग दिस वी शुड राइट, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि इस बार बैक साइड अटैक नहीं होगा। सो फॉर दैट वी शुड राइट हियर ड्यू टू presence of 3 methyl groups. Yes, आप उसको क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। आपका मिथाइल न्यूक्लियोफाइल, कॉमा कर लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल OH cannot attack carbon from backside. Hence, the mechanism can be explained in 2 steps. SN2 mechanism 1 step. अब ये बात याद रखना SN2 में एक ही स्टेप में होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, पर यहां ऐसा नहीं होगा, पहले ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा देन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, सो दैट, अब जैसे यहाँ पे लिख दिया इट इज गिवन हियर नाउ 2 स्टेप्स आर देयर, तो अब हम चले जाएंगे पहले स्टेप में, स्टेप 1, व्हाट हैपेंस इन फर्स्ट स्टेप, क्या हो जाता है इसमें। सो इन दिस स्टेप tertiary butyl bromide dissociates to form carbonium ion. That is breaking of CBr bond. Okay, now we'll see that. So the structure of tertiary butyl bromide is like this: CS3, tetrahedral structure, CS3, here another CS3 here, and Br. So very first step, this is slow step, a rate determining step. So now we'll see the transition state which is formed in this. CBr bond is going to break.
and that 3 methyl groups. So here fractional negative charge and fractional positive charge. This is the transition state, and I'll put transition state number 1. What happens in this step? As it is given here, tertiary butyl bromide dissociates. And what is formed? Carbonium ion is formed. So now we'll see that. So after breaking up of CBr bond, you will get carbonium ion, which we can draw like this. Yes. And leaving group is bromide ion. So this, you can say carbonium ion or carbocation, which is having plus charge, carbocation, electron deficient, electrophile, sp2 hybridized. So in very first step, what happens is breaking of CBr bond. Okay, now step 2. In this step, nucleophile OH minus attacks carbonium ion from both the sides. That I'll show you. मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा. Resulting, और हमारी स्टोरी भी हमने खत्म नहीं की है, वो आपसे बात करनी है, तो ये मैं लिख लूं पहले आपके लिए, and then we'll see that story आगे क्या होता है. Both the sides resulting in the formation of the product tertiary butyl alcohol with 50% inversion, which you saw in case of SN2, it was 100%. So here it is 50% inversion and 50% retention in configuration. ओके, ठीक है, देखते हैं. जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, आपको याद होगा, ये विंडो बनाया था हमने. यहाँ C है, ये आपके BR हैं, राइट? C and BR and this OH. और यहाँ सामने और भी लोग बैठे हुए हैं. एंड कीजा हियर, ये विंडो के पास है. हाँ, इसमें बड़े हो चुके हैं, तो मैंने ठीक है, सब बैठे हुए हैं एक साथ इधर. ओके, फिर वही स्टोरी, सब कुछ वैसा ही. ये अंकल यहाँ से आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब बच्चों को नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो वापस अपनी जगह पे. ऑब्वियसली हर कोई यही करता है, सब इंतजार करते हैं कि अब यहाँ से अगर सीट खाली हो जाए या तो फिर, है ना, तो ये OH अंकल वेट कर रहे हैं. तो जैसे BR अंकल का स्टॉप आ जाने के बाद, है ना, BR अंकल जब चले जाते हैं,
ये आपका बना दिया मैंने विंडो यहाँ पे। अब क्या हो रहा है मालूम है, बच्चे रिलैक्स हो गए, जैसे ये तो सामने से मैं बना दे रहा हूँ, रिलैक्स हो गया, अरे वाह अंकल चले गए, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई मम्मी के पास जा रहा है। सो नाउ दिस जो OH अंकल यहाँ पे हैं, वो क्या करेंगे मालूम है, वो सामने से यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, सामने से इन द सेंस BR की जगह पे, जहां से BR गए हैं वो जगह पे भी अटैक कर सकते हैं, और वो यहां भी जाके विंडो के पास ही बैठ सकते हैं। दोनों भी पॉसिबिलिटी है, आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप बस की बात करें, बहुत बार विंडो खिड़की से अगर कोई बंदा उठा है तो वही सीट आपको नहीं मिलेगी, है ना? और बहुत बार आपको विंडो की सीट मिल सकती है, अगर रेनी सीजन है, बंदा विंडो से उठा है तो आपको उसी सीट पे भेज देगा सामने वाला, भाई तुम भी जाओ वहीं बैठो। तो वो जगह मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर वही जगह मिल गई तो रिटेंशन, अपोजिट इन्वर्जन, जैसे आप यहां देख लीजिए BR है, अगर यही जगह मिलता है तो रिटेंशन, और अगर यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे अपोजिट में इनवर्जन। सो दैट विल सी हियर, मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज जब ड्रॉ करेंगे ये विल अंडरस्टैंड मोर। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका कार्बोनियम आयन है, सो कार्बोनियम आयन में हमने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, जरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये देखिए CH3 सामने से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊपर देयर इज CH3, और यहाँ एक आपका CH3 एक और है, एंड दिस वन मोर, ये CH3 आपके आ चुके हैं, एंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज। अभी जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, सो दिस विल अटैक फास्ट, यही खास बात है। पहले देखिए कैसे हुआ था, स्लो, रिएक्शन स्लो था, बट दिस टाइम अगर OH ने फास्ट अटैक नहीं किया तो कोई और अटैक कर देगा। सो दिस OH अटैक्स फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, दोनों भी चांसेस हैं। हम और नहीं बोलने वाले, हम एंड बोल रहे हैं, एंड दिस। अच्छा, अब अटैक करने के बाद पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बना लें, क्योंकि वो पहले लूजली बैठेंगे, तो वी कैन ड्रॉ हियर ट्रांजिशन स्टेट लाइक CH3 here, and loosely acquiring this fractional negative and positive charge. And then this is transition state number 2. Like here, this transition state was breaking of CBr, yes, and here formation of COH. Now we'll see the final products here. देखिए फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, सामने से अटैक किया है और बैक साइड से अटैक किया है, 50-50 चांसेस आर देयर। सो हम ड्रॉ करने वाले हैं स्ट्रक्चर लाइक हियर दिस मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, दिस OH राइट साइड। अगर आपने राइट साइड में ड्रॉ किया है तो ये हो जाएगा आपका 50% रिटेंशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी कैसी है, लेफ्ट, CH3 CH3. So this is 50% inversion
So what happens in SN1 reaction? Two-step reaction. One is breaking of CBr, second step formation of COH. But here, as you see, OH minus attacks fast from front and back side, and that's why 2 means 50% retention and 50% inversion is obtained. So between SN2 SN1, this is the difference. In SN2, one-step reaction, 100% inversion. Okay, so finally, now number 4, we'll write energy profile diagram. See this. This is here potential energy, reaction coordinates, position. This is A, reactants, B, transition state number 1, C, carbonium ion, transition state number 2, and finally here products. So between this reactants and products, this difference in energy is known as delta H. And here we have two activation energy. One is this delta E1 and another here, that is delta E2 activation energy. So these all points we should write. Say point A represents reactants. Yes, and you know very well reactants are tertiary butyl bromide and OH minus. Point B represents transition state number 1. Point C is carbonium ion, that you can write CS3 thrice C. Yes, carbonium ion, carbocation. Point D is what? Transition state number 2. Point E, products. That is CS3 thrice COH and Br minus. You can see here this point B and D, the peak which is there, that is transition state, energy is maximum there. Delta H is enthalpy, delta E is energy of activation. So here we completed this SN1 mechanism. We observe SN1 when there is overcrowding or steric hindrance, as you saw here. And SN2 is observed in simple molecules.